that is related to research. And you know that research is not possible without the internet, and the searching skills on the internet are very important to search internet effectively. Uh, for this reason, we planned a session, and we invited a very uh, experienced academician, and uh, a lady who is working in information management department at University of the Punjab, Lahore, to conduct this session. Dr. Saira has a number of research publications on her credit, and those publications are published in both national and international journals of repute. And published in she has also published in the various impact factor journals, uh, and she know the art of searching the internet and searching internet for effective purposes and for for without wasting much time. The tips and techniques that Dr. Saira is going to share with you will be very helpful to all of you to conduct research and to conduct search on the web for academic literature. Thank you very much, Dr. Saira, once again to join us. And now I would request you to please display your slides and kind Sure. start. Thank you very much, Asif Saab, for giving me another opportunity to share my thoughts and my experience with my colleagues. And yes, I'm going to share my slides. Just let me know if my screen is visible. Please let me know if my screen is visible. I hope I am audible. Okay, Nazar Fareed, आपको मेरी screen नजर नहीं आ रही. Okay, let me share it again. Please check now. Nazar, it's visible now. That's good. That's great. Okay, so let's discuss a few things before starting our talk. Dr. Saira, आपकी slides जो हैं वो those are not visible to me. अब चेक करें आसिफ साहब. जी 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 आपकी स्क्रीन शेयर है, लेकिन आपने वो क्लिक किसी दूसरी जगह पे किया था, आपके कंप्यूटर की दूसरी स्क्रीन विजिबल हो रही थी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की. नो हाँ नहीं, अब दोबारा करें वो आपने प्रेजेंटेशन पे दोबारा लेके जाइए काइंडली. हाँ जी, अब ठीक है, अब आपकी स्क्रीन शेयर है. थैंक यू Asif. Okay, so guys, today we are going to talk about the web searching skills. The major issue of this era is not the non-availability of the information, but the information flood, information overload. So a successful person in 21st century is that lucky man or guy who can search the right information at the right time. So here comes two questions. The first is about the right information, and the second is the right time. So maybe some of us are able to find the right information but not well in right time, and the others maybe are able to search information within no time, but they are unable to reach to their destination or the required information. So what we are going to do today, we are going to talk about the different techniques and tips that can save your time, that can help you to conduct efficient search. And by the way, this search is not about only research, it's about the all parts and aspects of our practical life. So I can understand that you people are working as a system professors, and you must have some experience of research.
you must have, some of you have completed some, PhD degree or maybe another research degree, MPhil or MS. But see, this is an area of expertise of people from information management who can help you out, that how you can find the right information and how you can save your time and energy. So what we do usually when we want to search some information, we start with 2 points. Sometimes we know exactly that what is our information need, हमें क्या चाहिए, but we need what is the required information. हमें किताब चाहिए और किताब भी चाहिए इशफाक अहमद की जाविया. Very clear. If the topic is very clear, you are able to find the right information much more efficiently than about the topic which is not clear to you, but you are in some information need of that area. मुझे ये नहीं पता कि मुझे इस पे कोई किताब मिलेगी या नहीं, but I know that I want to understand the web searching skills. Okay, well, what to do? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सबसे पहले ये करना चाहिए कि मुझे कुछ सवालों के जवाब लिख लेने चाहिए अपने पास. नंबर 1, व्हाट इज इट आई एम लुकिंग फॉर. मुझे चाहिए क्या, जो मुझे चाहिए उसके लिए कीवर्ड्स कौन से यूज होते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ सिनोनिम्स आर यूज्ड. मुझे एक लिस्ट बना लेनी चाहिए. मैं कौन से सब्जेक्ट हेडिंग मींस कीवर्डिंग है, उस एरिया के कीवर्ड्स कौन से इस्तेमाल करूंगा. मसलन आप देखें कि हम इस पे बात करना चाहते हैं कि आपकी एक कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है. So what we can do, we have different sort of keywords, we have different synonyms, like we can search pad, we can search tablet, we can search laptop. ये सब computer system है. We can search mobile, Android, whatever. So what is the right term? We can't decide because it is the author who is going to write that particular piece of information. अब वो लैपटॉप उसके लिए इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर सिस्टम के लिए टैबलेट करता है, एंड्रॉइड करता है, डेस्कटॉप कहता है उसको, कंप्यूटर सिस्टम कहता है, क्या कहता है, वी डोंट नो. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कीवर्ड्स, दोज बिलोंग टू योर सर्च आइटम और सर्च कॉन्सेप्ट. सी, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि उसके एक लिस्ट बना लेनी. Now the other question is how the other people would talk about it. मैं तो हमारे कल्चर में तो इसको ये कहते हैं, क्योंकि आप ग्लोबल इन्वायरमेंट में है ना, आप छोटी दुनिया तो अब आपकी है नहीं कि पाकिस्तान में आप सर्च कर रहे हैं. यू आर सर्चिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज. अब जब आप बाउंड्रीज से बाहर निकल गए और ग्लोबलाइजेशन के इन्वायरमेंट में, सो यू डोंट नो कि इसको बाकी लोग अदर कल्चर में क्या कहते हैं. आपको उसको जानना है कि यही कॉन्सेप्ट अगर एक यूरोपियन सर्च करेगा तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करेगा, अगर एक अमेरिकन सर्च करेगा तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करेगा. अच्छा, ये सारी बातें जो हैं, जब तक आपको नहीं पता चलती, आपके पास लिस्ट पूरी नहीं होती कि आपको सर्च किस तरह करना है. देन अलावा जो अगली बात है वो ये, यू शुड बी वेरी मच क्लियर आप ढूंढ क्या रहे हैं. आर यू लुकिंग फॉर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू सम न्यूज? Are you looking for a piece of information that must be in format of video? Are you looking for information जो कि आपको ऑडियो में चाहिए? आपको चाहिए क्या? PowerPoint प्रेजेंटेशन चाहिए, आपको PDF चाहिए, आपको किताब चाहिए, आपको आर्टिकल चाहिए, आपकी नीड क्या है? जब तक आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, you can't reach to the right database. मसलन मैं हर चीज गूगल पे क्यों तलाश करूं? मुझे पता है कि मुझे वीडियोस चाहिए, तो व्हाई नॉट कि मैं यूट्यूब पे चली जाऊं, व्हाई नॉट कि मैं डेली मोशन पे चली जाऊं. अच्छा, उससे क्या होगा, यू विल सेव द टाइम. इररेलेवेंट चीजें कम सामने आएंगी और रेलेवेंट चीजें ज्यादा सामने आएंगी. आई होप कि आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम ढूंढ किस चीज को रहे हैं. अच्छा, फर्ज करें ऐसा नहीं होता, फिर आप जनरल सर्च इंजन की तरफ जा सकते हैं. जब आप सर्चिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, या आप फॉर्मल सोर्सेज यूज करते हैं सर्चिंग के लिए, या आप इनफॉर्मल यूज करते हैं. फॉर्मल आपके पास क्या है, लाइब्रेरीज हैं, आपके पास डिफरेंट डेटाबेसेस हैं. इनफॉर्मल में एक्सपर्ट्स हैं, ह्यूमंस हैं, दोस्त अहबाब हैं, आप उनकी मदद लेते हैं. तो आज हम जिस पे बात करेंगे वो फॉर्मल सोर्सेज पे बात करेंगे, और फॉर्मल में भी ऑनलाइन सोर्सेज पे बात करेंगे, HCC डेटाबेसेस पे बात करेंगे, और हम डिफरेंट सर्च इंजन्स की सर्चिंग स्किल्स आपको सिखाएंगे. अच्छा जी, बिब्लियोग्राफिक एड से आप मदद लेते हैं कि आप डिफरेंट बिब्लियोग्राफीज देखते हैं, आप ऐसे डेटाबेसेस देखते हैं जिसमें इंडेक्सिंग होती है. अच्छा, ये वो 5 सर्चिंग टेक्निक्स हैं जो आपने टिप्स पे रखनी है.
बुलियन ऑपरेटर्स, फ्रेज सर्च, ट्रंकेशन, प्रॉक्सिमिटी और फोकसिंग एंड लिमिटिंग अ सर्च। इन पांचों को हम वन बाय वन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मैं इस वक्त अपनी स्क्रीन आपको स्विच कर रही हूँ गूगल पे। ये जी हम गूगल खोल रहे हैं। अच्छा, ये गूगल का इंटरफेस है जो आपके सामने आता है और आप सर्च करते हैं जी कि आज की आपको कोरोना की करंट सिचुएशन पाकिस्तान की सर्च करनी है। जब आप करंट सिचुएशन कोरोना पाकिस्तान की सर्च करना चाहेंगे तो आपको जिस तरह अभी मैंने जनरल सर्च की है ये नहीं करनी चाहिए। आपको पर्टिकुलर न्यूज के डेटाबेस में चले जाना चाहिए ताकि आप रिलायबल सोर्सेज से प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकें। एनसीओसी 22 घंटे पहले की खबर है, एक दिन पहले की खबर है। करंट न्यूज आपको चाहिए, आप न्यूज के डेटाबेसेस में चले जाएं। ऑल पे जाएंगे तो रिजल्ट्स की तादाद बहुत ज्यादा होगी, कुछ इररिलेवेंट होंगे, कुछ अनरिलायबल होंगे। न्यूज में जाएंगे, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, डॉन, द न्यूज इंटरनेशनल, डिफरेंट आपको न्यूज सोर्सेज मिल जाएंगे जहां से आपको ये खबर मिल रही है। तो आपको कहाँ जाना चाहिए? न्यूज के डेटाबेस। अच्छा, फर्ज करें कि हम एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और हमने वहां कोरोना वायरस की कोई तस्वीर ऐड करनी है, तो मुझे ऑल पे नहीं जाना चाहिए, मुझे इमेजेस के डेटाबेस में जाना चाहिए। देखिए, मैं बड़ा पिन पॉइंटेडली क्विकली अपनी उस नीड तक पहुंच गई जो मुझे चाहिए था। कोरोना वायरस की डिफरेंट पिक्चर्स अगर मैं ऐड करना चाहूँ, फर्ज करें आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आप यहाँ से उठा लें। ऑल पे वापस जाती हूँ, ये देखिए इमेजेस में वापस जाती हूँ, इसकी सब कैटेगरीज बनी हुई आपको मिल जाती हैं कि आपको इंफॉर्मेशन किस किस तरह की चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं फिर वापस आती हूँ। अच्छा, फर्ज करें आपको इसी मौजू पे कोई वीडियो चाहिए, तो गूगल में रहते हुए सिर्फ वीडियोस पे क्लिक कर दें। इस डेटाबेस में यूट्यूब, हॉपकिन, जहां से भी वीडियो बनी हुई होगी, इवन WHO की देखें वीडियो, जहां से वीडियो बनी हुई होगी वो आ जाएगी। आपको इररिलेवेंट चीजों में जाने की जरूरत ही नहीं। आप वीडियोस के डेटाबेस में चले जाएं और आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अच्छा, फर्ज करें इसी मौजू पे मुझे कोई किताब चाहिए। नहीं जी, गूगल बुक्स में कोविड पेंडेमिक आ गया, द डेडली कोरोना वायरस आउटब्रेक 2020 में छपी है, बच्चों के लिए भी आ गई कोरोना वायरस की बुक। अच्छा, हम अगर ऑल पे यही लिखते और साथ में बुक लिखते तो बड़े ही रिजल्ट आते। इतने सारे रिजल्ट्स जो हैं, इनमें से राइट इंफॉर्मेशन तलाश करना ज्यादा मुश्किल काम है एज कंपेयर टू दैट कि आप रेलिवेंट डेटाबेस पे चले जाए। ये देखिए कोरोना वायरस की किताबें जो थी वो आ गई। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं ऑल की तरफ। अच्छा, इमेजेस का डेटाबेस है, बुक्स का डेटाबेस है, न्यूज का डेटाबेस है, वीडियोस का डेटाबेस है। इसके अलावा भी गूगल के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कॉमनली शायद इस्तेमाल ना करते हो। मसलन आप ये देखिए कि ये दो टर्म्स हैं, कोरोना वायरस और बुक। ये एक टर्म नहीं है, ये दो टर्म है। अच्छा, अगर मुझे एग्जैक्ट टाइटल पता हो किसी चीज का, मसलन मैंने अभी मैंने किताबें तलाश की, बुक्स, मुझे इसका टाइटल पता है, फर्ज करें मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ये कॉपी कर लेती हूँ। अच्छा, अब यही एंटर करती हूँ और ऑल पे चली जाती हूँ। आप जरा रिजल्ट्स की तादाद और कीजिएगा। अब अगर मैं इसको सर्च में बदल दूं, यानी इसके साथ डबल कोटेशन मार्क्स लगा दूं, तो हम वहां पहुंच जाएंगे जहां हमें पहुंचना था। तो अगर हमें किसी किताब का टाइटल पता है तो हमें ये देखिए ये है, अगर हमें किताब का टाइटल पता है तो हमें जनरल सर्च की बजाय फ्रेज सर्च करनी चाहिए डबल कोटेशन लगा। किताब का टाइटल पता है, आर्टिकल का टाइटल पता है, कुछ भी अगर आपको पता है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए कि डबल कोटेशन लगा देनी चाहिए। ये फ्रेज सर्च कहलाती है, ये फ्रेज सर्च। अभी मैं जो आपको अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा रही थी उसमें यहाँ पे फ्रेज सर्च है, ये यहाँ पे हम पहुंचे हैं। फ्रेज सर्च हमने करके देखी है। फ्रेज सर्च किस तरह होती है? अगर आपको डबल कोटेशन भूल जाए तो आपने यहाँ पे एडवांस सर्च पे जाना है
यहाँ से सेटिंग, एडवांस सर्च, और यहाँ पे दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज, यहाँ जो भी लिखेंगे, मसलन मैं यहाँ कोई और लिखती हूँ, मसलन एक किताब है रिसर्च डिजाइन और मैंने ये लिख दिया एग्जैक्ट फ्रेज और वर्ड, आप डबल कोटेशन नहीं लगाए, वो खुद ही लगा देगा। एडवांस सर्च पे क्लिक करें, ये देखें डबल कोटेशन आ गए और एग्जैक्ट क्रेसवेल की किताब नीचे आ जाएगी, या वो किताबें जो रिसर्च डिजाइन के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब ये है स्पेसिफाई कर दिया आपने कि मुझे टाइटल पता था। अगर आपको टाइटल नहीं पता होता तो हम डबल कोटेशन मार्क नहीं लगाते, हम दो टर्म्स को आपस में मिला देते हैं। रिसर्च डिजाइन इस तरह से लिख दिया, लेकिन इसमें नंबर ऑफ रिजल्ट्स बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। अच्छा, इसको और बेहतर किया जा सकता है इस रिजल्ट को। मसलन मुझे रिसर्च डिजाइन पे चाहिए इंफॉर्मेशन, लेकिन इंफॉर्मेशन मुझे पावर पॉइंट चाहिए। फर्ज करें अभी आपने रिसर्च डिजाइन में नंबर ऑफ रिजल्ट्स नोट करने हैं, ये जरा गौर कीजिएगा, नंबर ऑफ रिजल्ट्स आपने नोट करने हैं। अच्छा, यहाँ तक मैं अपनी बातें आपको कन्वे कर पा रही हूँ? जरा चैट बॉक्स में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ग्रेट, अल्लाह साहब, थैंक यू। अच्छा, अब हम देखें, आपने इस नंबर पे गौर करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर मुझे सिर्फ पावर पॉइंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं ये सेटिंग्स में एडवांस सर्च पे चली जाऊं और यहाँ जाके ये फाइल टाइप होती है, फाइल टाइप, इसमें मैं जरा तलाश करती हूँ पीपीटी कहाँ है। ये है जनाब पीपीटी, मैंने क्लिक कर दी एडवांस सर्च। अब जरा नंबर ऑफ रिजल्ट्स देखिएगा कितने रिड्यूस हुए। एक तो आप इस पे फोकस करें कि ये बहुत कम हो गए, और दूसरा आपने फोकस करना है कि हर फाइल के आगे पीपीटी लिखा होगा। ये जरा गौर करें, ये गौर करें, पीपीटी पीपीटी, और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन कोई आई ही नहीं, पीपीटी पीपीटी। अच्छा, अब अगर फर्ज करें कि यही मुझे इसकी बजाय पीडीएफ देखनी है, मुझे पीपीटी नहीं चाहिए। अब आप नंबर ऑफ रिजल्ट्स जरा नोट कर लें, नंबर ऑफ रिजल्ट्स नोट कर लें, ये आपके नंबर ऑफ रिजल्ट्स। अच्छा, अब मुझे जरा पीडीएफ देखनी है, देखते हैं कोई डिफरेंस आता है, आना चाहिए लॉजिकली। अच्छा जी, हमने लिखा रिसर्च डिजाइन और फाइल टाइप में हम कर देते हैं जनाब पीडीएफ एडवांस सर्च। लें जी, पीडीएफ रिजल्ट्स में डिफरेंस देखिए, पीडीएफ पे ज्यादा तादाद में चीजें अवेलेबल है, होनी भी चाहिए। रिसर्च डिजाइन टॉपिक ही ऐसा है। अब ये देखें, हर एक पीडीएफ होगी आपके पास, पीडीएफ के अलावा कोई चीज सर्च होके नहीं आएगी आपके पास, सिर्फ पीडीएफ। तो फाइल टाइप में आप मुख्तलिफ फाइल टाइप्स के साथ इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। लिस्ट में आपको दिखाती हूँ फाइल टाइप की, कि आपके पास पूरी लिस्ट होती है, उसमें से आप चूज कर सकते हैं। ये देखें जी, ये लिस्ट में क्लोज कर रही हूँ, पीडीएफ है, .ps है, .dwf है, KML है, KMZ है, XLS है, PPT है, .doc है, डॉक्यूमेंट अगर देखना है, जो भी आपने देखना है यहाँ से चूज करना है। अच्छा, ये तो हो गया जी फाइल टाइप। अच्छा, अब अगर फर्ज करें कि आपको, जैसे मैंने अभी कोरोना वायरस लिखा यहाँ पे, तो कोरोना वायरस पे इंफॉर्मेशन मुझे पुरानी चाहिए ही नहीं, साइंस के बहुत सारे लोगों को पुरानी इंफॉर्मेशन ही चाहिए होती। अच्छा जी, क्या किया जाए? कोरोना वायरस में मैंने कहा लास्ट अपडेट पास्ट 24 आवर, सिर्फ पिछले 24 घंटे की इंफॉर्मेशन मैंने सर्च कर दिया। रिजल्ट्स देखिए आप जरा, अब ये 24 आवर्स में आएंगे, ट्रेनिंग चल रही, अब ये 24 आवर्स में आएंगे। ये जरा गौर करें, सिर्फ पिछले 24 घंटों में जो इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है, देखें सबसे टॉप पे covid.gov.pk की इंफॉर्मेशन आ गई। ये देखिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन आ गई जो कि पिछले 24 घंटे में अपडेट हुई है। तो आपके रिजल्ट्स बड़े स्पेसिफाई हो गए, ठीक है, रिजल्ट्स बड़े स्पेसिफाई हो गए, पुरानी इंफॉर्मेशन नहीं आई, पिछले 24 घंटे की इंफॉर्मेशन। आगे क्या लिखा आ रहा है? पास्ट 24 आवर्स। यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, पास्ट ईयर पे भी जा सकते हैं, ठीक है, पुरानी थोड़ी हो जाएगी। पास्ट आवर में भी जा सकते हैं, पिछले 1 घंटे में अगर कुछ अपडेट हुआ है तो उस पर इंफॉर्मेशन मिल जाए आपको, ठीक है। अच्छा, ये हो गई जनाब आपकी टाइम के साथ रिलेटेड सर्च, टाइम के साथ रिलेटेड सर्च। एनी टाइम कर दिया वापस, मैंने एनी फॉर्मेट कर दिया।
अच्छा, एक और चीज मैंने जो ऑब्जर्व की है वो हमारे कलीग्स को बड़ी चाहिए होती है। मोहम्मद अशरफ, स्क्रीन नॉट विजिबल, व्हाई? बाकी लोगों को विजिबल है मेरी स्क्रीन? कोई लिख दे। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके अपना आप जरा रीज्वाइन कर लें। जी थैंक यू मकसूद साहब, जावेद साहब। ओके, अच्छा अब हम अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे दोस्त अहबाब क्या करते हैं, कलीग्स जो हैं हमारे, इन्हें पढ़ने के लिए या अपने बच्चों के लिए या अपने दोस्तों के लिए स्कॉलरशिप्स चाहिए होते हैं। अच्छा, अब्दुल हफीज साहब, आप अभी जो है मेरे मीटिंग गूगल इसकी आपकी टीम व्यूअर पे हूँ। मैंने खुद ही अभी गूगल नहीं सर्च किया हुआ, मैं आपके चूंकि मैसेजेस भी पढ़ना चाह रही थी साथ, इसलिए वो स्क्रीन विजिबल नहीं है। अदरवाइज अगर मैं आपको ये चैट बॉक्स और चीजें नजर आ रही हैं तो ये विजिबल ही है। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक और बात कर रही हूँ, वो ये बात कर रही हूँ कि आपने दोस्तों के लिए स्कॉलरशिप सर्च करने हैं, आपने अपने बच्चों के लिए कोई फ्यूचर सर्च करनी है। अच्छा, अब जब आप लिखेंगे ना कि स्कॉलरशिप इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, तो आपको हजारों रिजल्ट्स आ जाएंगे जो इररिलेवेंट भी होंगे उनमें से बहुत सारे, और शायद रिलायबल भी ना हो। तो हमें करना क्या चाहिए, ये देखें जी, मैं यहाँ पे सर्च में लिखती हूँ, फर्ज करें स्कॉलरशिप्स, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो हमारा दिल करता है, पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया, इसके साथ मुझे यहाँ पे साइट और डोमेन में .edu लिख देना चाहिए। अब जितने रिजल्ट्स आएंगे वो रिलायबल सोर्स से आएंगे और सिर्फ .edu की साइट से आएंगे। ये देखिए, अब मैं पास्ट आवर की बजाय एनी टाइम कर देती हूँ ताकि ये ज्यादा रिजल्ट्स आए। अच्छा जी, ये देखें जी, फेलोशिप अपॉर्चुनिटी कहाँ की पहली आई है, MIT की, monash.edu, बफलो यूनिवर्सिटी की, ये देखें ये यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो की है। अच्छा जी, कॉर्नेल है। आप जरा गौर कीजिए, ये सारे स्कॉलरशिप्स कहाँ से आए हैं, ये आए हैं एजुकेशन की डोमेन की वेबसाइट से, यानी कमर्शियल डोमेन से नहीं आए। अगर हम डोमेन ना स्पेसिफाई करते तो .com से भी आते, .edu से भी आते, लेकिन .com से भी आते, यानी चांसेस ये था कि मिक्स होकर रिजल्ट आते और कहीं आप थोड़े से मिसगाइड भी हो सकते थे। अब पिन पॉइंटेडली आपको ढूंढना था स्कॉलरशिप, और ढूंढना जाहिर है किसी यूनिवर्सिटी में था, तो हमने क्या किया कि साइट या डोमेन लिख दी .edu। अच्छा, इसी तरह फर्ज करें कि मुझे पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन पे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं लिखती हूँ पाकिस्तान इकोनॉमी और जरा सर्च करते हैं। ये आपने जरा रिजल्ट्स देखने हैं। अब हम इसकी डोमेन स्पेसिफाई कर देते हैं। भाई पाकिस्तान इकोनॉमी पे बेस्ट इंफॉर्मेशन तो मुझे कौन देगा, .gov.pk, जाहिर है। तो जरा .gov.pk में सर्च करते हैं, रिजल्ट्स भी देखें बहुत थोड़े हो गए, जरा नोट कर लें, रिजल्ट्स बहुत थोड़े हो गए, और उसके साथ आए भी कहां से, .gov.pk की वेबसाइट्स। ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे आ गया। यानी फर्ज करें आपको नहीं पता कि पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे कोई चीज होती है, हर साल आता है, आपने सिंपली क्या करना है, डोमेन सेट कर देनी है, मुझे चाहिए .gov.pk, क्योंकि रिलायबिलिटी का मामला है। अच्छा, अगर आप पीके नहीं, दुनिया की किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट जैसे WHO है या कोई और है, तो हम क्या करेंगे, इसी एडवांस सर्च में जाके पीके हटा देंगे और .gov लिख देंगे, एंटर कर देंगे। अब वो GOV से तो लाएगा, लेकिन उसके साथ जरूरी नहीं कि पीके से हो। ठीक है, ये देखें USAID है, USIP है। अब जरा इंटरनेशनल लेवल की बात हो गई। ठीक है, आई होप आपको डोमेन सर्च समझ आ रही है। हम यहाँ पे क्लियर है? देखें, जिन लोगों की स्क्रीन विजिबल नहीं है ना, वो प्लीज रीज्वाइन कर लें। कुछ लोगों को विजिबल है, इसका मतलब यह है कि मेरे एंड पे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हम यहाँ तक ठीक काम कर रहे हैं भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ओके है जी मोहम्मद जवेद साहब, बिल्कुल ठीक हो गया, ऑल क्लियर, दैट्स ग्रेट। अच्छा, हमने अब क्या किया कि डोमेन सर्च कर ली, डोमेन सर्च कर ली, ठीक है। अच्छा, मैं वापस एडवांस सर्च पे जाती हूँ। अच्छा,
आपको बाज़ औक़ात ना श्योर नहीं होता कि कीवर्ड यही इस्तेमाल होता है, तो आप यहाँ कई कीवर्ड्स लिख दें। मसलन मैंने कोविड लिख दिया, मसलन मैंने कोरोना वायरस लिख दिया, मसलन मैंने पेंडेमिक लिख दिया। अब नहीं पता होता किसी, एनी ऑफ दीज वर्ड्स, ऐसे डॉक्यूमेंट दिखा दो जिसमें इनमें से कोई भी हो, एनी ऑफ दीज। जियो भी अब मैं यहाँ से खत्म कर देती हूँ, एनी टाइम एनी फॉर्मेट आ गया, एडवांस सर्च। तो क्या करेगा ये, और ऑपरेटर लगा देगा, और ऑपरेटर, यानी चाहे कोविड लिखा हुआ है तो भी सर्च होके आ जाए, डॉक्यूमेंट के अंदर कोरोना वायरस है तो भी सर्च होके आ जाए, पेंडेमिक है तो भी सर्च हो। तो आप देखिए रिजल्ट्स की जरा तादाद देखिए, बड़ी है। अभी मैं इसको कम करती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये वाला और हटा दो, और अब रिजल्ट्स देखते हैं। ये देखिए कम हो गए, एक और हटाती हूँ, और कम हो गए। तो आप समझ गए होंगे कि और का ऑपरेटर जो है, ये आपको मसलन आपको ये लग रहा है कि इसका नाम लैपटॉप भी हो सकता है, तो और कैपिटल में लिखें और कहें जी कि इसका नाम डेस्कटॉप भी हो सकता है, और लिखें कैपिटल में, और या उधर जाकर एडवांस सर्च में चले जाएं और लिखें जनाब इसका नाम टैबलेट भी हो सकता है, और रिजल्ट देख लें आप, सारी चीज़ें सर्च होके आ जाएंगी, लैपटॉप भी, डेस्कटॉप भी, टैबलेट भी, बहुत कुछ सर्च हो। इसका पहला और हटाऊंगी तो रिजल्ट्स कम हो जाएंगे, दूसरा और हटाऊंगी तो रिजल्ट्स और कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो और ऑपरेटर है ये बताता है कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये टर्म भी इस्तेमाल हो सकती है इसमें, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो आप क्या करें कि और ऑपरेटर लगा लें। ये बुलियन ऑपरेटर्स हैं जिसमें से एक मैंने और आपको बताया, OR। जी ये ऑपरेटर क्लियर है? जी राना मोहम्मद साहब मुझे बताइएगा कहाँ से रिपीट करूं, आप कहाँ तक क्लियर है? जी किसी को कोई मसला है तो मुझे लिख दें कि क्या चीज नहीं समझ आई। अभी और ऑपरेटर क्लियर है, फाइल टाइप नॉट क्लियर है। ललिता साहब मैं आपको दोबारा बताती हूँ। फाइल टाइप ये है सर, देखें मैंने एक मौजू पे कोविड पे ना आज आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो मेरी मदद ज्यादा प्रेजेंटेशन करेंगी, हो सकता है मुझे PDF या किताब फॉर्म में ना चाहिए वो चीजें, तो मैं क्या करूंगी कि मैं कहूंगी कि अच्छा मेरा टॉपिक है जी कोविड, और मुझे चाहिए COVID-19 और मुझे चाहिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे ये जो सेटिंग्स के टैब में जाके एडवांस सर्च में जाके मैं क्या करूंगी कि फाइल टाइप चूज कर दूँ। थोड़ा सा नेट स्लो लग रहा है। फाइल टाइप, अच्छा फाइल टाइप कहाँ है जी, ये है फाइल टाइप। इसमें जाके ना मैं कहूंगी कि मुझे तो चूंकि PPT चाहिए थी तो मैं बाकी क्यों देखूं, तो मैं सिर्फ PPT क्यों ना सर्च कर लूं। ये देखें थोड़ी होंगी क्योंकि अभी तो PPT इस पे इतनी बनी नहीं होंगी, लेकिन अगर होंगी तो वो यहाँ आ जाएंगी, और वो आ गई हैं। ये देखें PPT PPT PPT, ठीक है। PPT के अलावा कोई फाइल नहीं आएगी। यहीं पे अगर मैं इसकी बजाय PDF कर दूं, ये आपको विजिबल होगा मुझे उम्मीद है, PDF कर दूं यहाँ पे या उधर जाके सेटिंग्स में एडवांस सर्च में, तो अब ये PDF ले आएगा सारी। अब यहाँ पे अगर आप गौर कीजिए तो अब यहाँ पे PDF आएंगी, ये गौर करें, ये मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखा देती हूँ, ये सारी PDF सर्च होके आ रही हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो फाइल टाइप का मतलब ये है कि आप बजाय हर तरह की फाइल ढूंढने के, अगर मैं सिर्फ COVID-19 लिखती तो इसमें शायद एक्सेल फाइल भी आ जाती, इसमें PDF भी आती, पावर पॉइंट भी आती, बड़ा लंबा चौड़ा मामला बन जाता। आप एक एक करके कितने सफे देख सकते हैं। यानी मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं दुनिया में जो गूगल के दूसरे तीसरे सफे पे जाते हैं, पहले सफे पे जितने रिजल्ट हैं देख के वापस चले जाते हैं। तो हमें पहले सफे पे जो रिजल्ट लाने चाहिए वो मोस्ट रेलिवेंट लाने चाहिए, इररेलेवेंट नहीं लाने चाहिए। तो हमने क्या करना है कि फाइल टाइप चूज कर लेना। जी मैं वापस आ रही हूँ आपकी तरफ, क्लियर हो गया? मंजूर साहब कह रहे हैं क्लियर है, थैंक यू जी। आमिर साहब कह रहे हैं क्लियर है।
राना मोहम्मद इमरान साहब जी, राना साहब क्लियर, अल्लाह ताला साहब क्लियर हो गया, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, हमने सारों को साथ लेके चलना है, प्लीज डोंट माइंड, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और आएगी नेचुरली, थोड़ा न्यू है, ठीक है। अच्छा जी, और कोई सवाल है तो ठीक, वरना हम आगे चलते हैं। So should I move on? ओके, दैट्स ग्रेट। हम वापस आते हैं जी। अच्छा, ये तो बातें जो हम कर रहे हैं, एडवांस सर्च को आपने बड़ा ज़हन में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बातें हम कर रहे हैं, मैंने आपको साइट और डोमेन बता दी। अच्छा, कोविड-19 फर्ज करें आप चाहते हैं कि चाहिए आपको कोई भी फॉर्मेट, लेकिन चाहिए खास रीजन से, मसलन अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन है, तो सर्च कर लें अफगानिस्तान के रीजन। कोविड-19 में जो इंफॉर्मेशन आएगी वो अफगानिस्तान से आ जाएगी, ये देखिए अफगानिस्तान के बारे में आ जाएगी, ये सारी अफगानिस्तान रीजन पे चीजें आ जाएंगी। आप गौर कर लें, अफगान यूएस एम्बेसी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान अफगानिस्तान, यानी आपकी रिसर्च कहती है कि मैंने रिसर्च ही साउथ एशिया पे करनी है, तो आप क्यों ढूंढते फिर यूरोप की चीजें और अमेरिका की चीजें? आप यहाँ से रीजन तय कर लें कि जनाब मुझे तो चाहिए फलां रीजन है। ये देखिए एडवांस सर्च पे वापस आती हूँ, वापस आके तो मैं जनाब यहाँ से चूज कर लें आप, अफगानिस्तान है जी, अमेरिका है, जिस रीजन में रहना चाहते हैं आप, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में चले जाएं, बांग्लादेश में चले जाएं। तो अभी हमने, आपको पता है ना कि हमने अगर देखना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सूरत हाल इस वक्त क्या है, तो आप ये देखें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिखें, इंडस्ट्री ड्यूरिंग कोविड, और देख लें जरा बांग्लादेश के अंदर के क्या सूरत हाल है, श्रीलंका के अंदर देख लें, पाकिस्तान के अंदर देख लें, आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो तो इनके पास है ना। तो जनाब हम बांग्लादेश में चले जाते हैं और देख लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल रही कोविड-19। ये है जी, बांग्लादेश टेक्सटाइल एंड pearl industry during COVID-19, impact on selected RMG factories and way forward, pandemic triggers big jobless losses in Bangladesh RMG sector। देख लें, आपके सामने सारी चीजें हैं गारमेंट्स की इंडस्ट्री की, आप पाकिस्तान से देख सकते हैं, आप बांग्लादेश से देख सकते हैं, आप श्रीलंका से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें कोई मसला रीजन में, एडवांस सर्च पेज ओपन करने के स्टेप नजर साहब मैं बिल्कुल बताती हूँ आपको। आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है, आपने एडवांस सर्च पे क्लिक करना है, एडवांस सर्च में जाके आपने यहाँ अपना टाइटल लिखना है जो भी टॉपिक है आपका, और यहाँ से आप लैंग्वेज भी कोई चूज कर सकते हैं, रीजन भी कोई चूज कर सकते हैं, टाइम भी कोई चूज कर सकते हैं, साइट और डोमेन भी यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आपको इस बात का अंदाजा है कि आप का जो पेज है इसके अंदर, ये जो आपका पेज है, आप इसके टाइटल में चाहते हैं कि ये नाम आए, देखो टाइटल में आएगा तो वाज़ेह है ना कि सारा कुछ उसके बारे में लिखा होगा। जैसे एक किताब का टाइटल है रिसर्च डिजाइन, तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं ना वो सारी किताब रिसर्च पे बात करेगी। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब उस रिसर्च की किताब में एन मुमकिन है कहीं बांग्लादेश का लफ्ज भी हो, तो हम अगर इसको कहेंगे कि एनीवेयर इन द टेक्स्ट देख लो, तो चांस है कि जरा कम इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन आए। तो अगर आप ये कहो कि इन द टाइटल ऑफ द पेज, इन द टाइटल ऑफ द पेज, तो बड़े चांसेस हैं कि आप रिजल्ट्स जो हैं वो, मैं इसको एनी रीजन कर देती हूँ, रिजल्ट्स जो हैं वो रेलिवेंट मिले आपको। ये मैं एडवांस सर्च में करती हूँ, ये देखिए जी टाइटल में ये लफ्ज आए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आ रही है, आ रही है, ठीक हो गया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है सर। आपके लिए मैंने स्टेप रिपीट कर दिए नजर साहब, अब क्लियर है? जबरदस्त हो गया जी। अच्छा, हम अब आगे चल सकते हैं या फिर यहाँ तक कोई और सवाल? क्योंकि हम गूगल से अब बाहर आ रहे हैं, हम अब इसकी एक सिस्टर सर्च इंजन है गूगल स्कॉलर, उसमें जा रहे हैं।
ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, गूगल स्कॉलर जो है वो बेसिकली क्या है, वो गूगल जो है ये कमर्शियल या जर्नल समझ लें, जर्नल सर्च इंजन है, जबकि जो गूगल स्कॉलर है वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस्ड सर्च इंजन, सॉरी स्कॉलरली सर्च इंजन है। अच्छा, स्कॉलरली सर्च इंजन का मतलब ये है कि यहाँ जो चीजें पब्लिश सामने आएंगी वो पब्लिश्ड मिलेंगी, पब्लिश्ड इन सम पीयर रिव्यूड जर्नल्स, किताबें, पब्लिशर, यानी रिस्पॉन्सिबल होंगे लोग, उसके रिलायबल ज्यादा होती हैं। हम रिसर्चर्स को यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अच्छा, फर्ज कर लें कि आप कोई चीज गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल आपके पास बहुत सी अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी आएगी उस मौजू पे। मसलन देखिए, मैं भी अगर अपने व्हाट्सएप पे अपने फेसबुक पे कोई स्टेटस लगाती हूँ ना, और उसी मौजू पे जो आप सर्च कर रहे हैं तो वो सर्च होके आ जाएगा, जबकि ये चीज इंफॉर्मेशन गूगल स्कॉलर पे सर्च होके नहीं आएगी, क्योंकि वहां ऑथेंटिक पीयर रिव्यूड इंफॉर्मेशन होती है। तो हम जरा चलते हैं गूगल स्कॉलर की तरफ। गूगल स्कॉलर पे जनाब हम चले गए और फर्ज करें कि हमने कोई से भी दो लफ्ज लिखे, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ये लिख दिया जी हमने, इंफॉर्मेशन सर्च होके आगे, और ज्यादातर आए आर्टिकल या किताब आएगी, इसके अलावा यहाँ नहीं इंफॉर्मेशन आएगी, बहुत कम पेटेंट्स भी आते हैं कुछ। अच्छा, अब आपके लेफ्ट साइड पे ये एक लिस्ट है, इसको कहते हैं लिमिटर्स। यहाँ पे मैं अपनी वापस पावर पॉइंट पे जाती हूँ, हमारे पास ऑप्शन है फोकसिंग और लिमिटिंग अ सर्च। अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो है फोकस करना और सर्च को लिमिट करना। ये आपकी लेफ्ट साइड पे इंफॉर्मेशन है जनाब। मुझे इंफॉर्मेशन लिटरेसी पे चाहिए इंफॉर्मेशन, लेकिन चाहिए पिछले 3 सालों की, तो मैं क्या करूंगी, 2017 पे क्लिक कर दूंगी। 2017 से लेके अब तक के रिजल्ट्स आए, अगर आप गौर करें 2021, 2018, 2020, आपको 2017 से कम पुराने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमने लिमिट कर लिया। अच्छा, इसके अलावा ये देखें आपके पास ऑप्शन है, साइटेशन इंक्लूड करनी है, पेटेंट्स इंक्लूड करने हैं या नहीं करने, एक्सक्लूड करनी है तो यहाँ से कर दें एक्सक्लूड। अब रिजल्ट्स और कम हो गए, ये देखिएगा, जरा नजर रखिएगा रिजल्ट्स पे, अगर मैं साइटेशन इंक्लूड कर दूं तो रिजल्ट्स ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, आप कस्टम रेंज कर सकते हैं, मसलन इसकी बजाय यहाँ लिख देंगे जी मुझे 2012 से अब तक चाहिए। ठीक हो गया, 2012 से रिजल्ट्स आ गए। अच्छा, सॉर्ट भी आप मर्जी से कर सकते हैं, सॉर्ट बाय रेलेवेंस और सॉर्ट बाय डेट। अब जो है वो सबसे नए टॉप पे आ जाएंगे और पुराने उससे नीचे, सॉर्ट बाय डेट हो गया। अच्छा, इसमें भी यहाँ पे क्लिक करेंगे ना आप, ये आपके लेफ्ट पे जो 3 लाइनें बनी हुई हैं, ये भी सेटिंग्स का सिंबल है, इसमें जाएंगे तो एडवांस सर्च आएगी। एडवांस सर्च इसमें भी है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी खुलती है तो मैं आपको बताती हूँ। ये थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हो रहा है। जी, ये एडवांस सर्च हमारे पास आ गई। अच्छा, एडवांस सर्च जो है आपके पास, इसमें आप वही ऑल ऑफ द वर्ड्स, एग्जैक्ट फ्रेज और एटलीस्ट वन ऑफ द वर्ड, ये तो ऐड कर सकते हैं। जो इसमें नई चीज है ना वो ये है कि ये, और जैसे वहां पे था कि एनीवेयर इन द आर्टिकल, या आप टाइटल में चाह रहे हैं, टाइटल में चाह रहे हैं तो स्पेसिफिक हो जाएगा। यहाँ पे भी आर्टिकल्स की डेट वगैरह, या कोई अगर ऑथर है स्पेसिफिक इसका, मसलन इसमें अगर मैं कोई ऑथर लिख देती हूँ तो सर्च करके ले आएगा कि इस टॉपिक पे इस ऑथर ने जो लिखा है इन डेट्स में वो बता दें, टाइटल आ रहा हो, अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हुई तो आ जाएगी सामने। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है जी। वो कह रहे हैं जी ऑथर वेबर में ऐसी कोई नहीं है, ऑथर को अगर मैं रिमूव कर दूं, अगर आपको पता हो तो आप लगा सकते हैं।
तो आप टाइटल में इंफॉर्मेशन, ये ऑल इन टाइटल आ गया, सिर्फ टाइटल में इंफॉर्मेशन लिटरेसी होनी चाहिए, बाकी जाहिर है सारा सब्जेक्ट उसके बारे में ही बात करेगा। तो मैंने ऑल इन टाइटल में कर दिया। जब आप स्पेसिफिक ये देखना चाहें कि इस मौजू पे कितनी चीजें हैं, तो ये वाली टर्म, ये वाला ऑल इन टाइटल यूज कर लिया करें एडवांस सर्च में जाके, ये वाला इन द टाइटल ऑफ द आर्टिकल। मैं थोड़ा क्लोज करती हूँ, इन द टाइटल ऑफ द आर्टिकल, इस पे क्लिक करेंगे तो टाइटल में सारी इंफॉर्मेशन सर्च होके आएगी, बाकी टेक्स्ट में तो आएगी आएगी, लेकिन टाइटल में अगर मौजूद है तो वो चीजें सर्च होके आएंगी। और ये आए हैं 715 रिजल्ट्स, अगर आप देखें तो बड़े स्पेसिफिक रिजल्ट्स हैं, अगर आप देखें तो बड़े स्पेसिफिक रिजल्ट्स हैं। 715, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हैं बाय रेलेवेंस, ठीक है। जी, ये जो है गूगल स्कॉलर, इसके बारे में क्लियर है, तो हम मूव ऑन करें। इन विच रो वी राइट, ललिता साहब मैं दोबारा बता देती हूँ, ये एडवांस सर्च, आपने यहाँ एग्जैक्ट फ्रेज लिख दिया, और एग्जैक्ट फ्रेज के बाद आपने वेयर माय वर्ड्स अकर, ये फ्रेज या ये दो लफ्ज कहाँ नजर आने चाहिए, तो आपने इस पे क्लिक कर दिया, इन द टाइटल ऑफ द आर्टिकल, और ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आ गई। अब मुझे बताइएगा, हम क्लियर हैं तो हम थोड़ा आगे चलें। दैट्स गुड, तो मूव ऑन करते हैं जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आगे चलते हैं। अच्छा जी, हम अब नेक्स्ट बात करते हैं जी, नेक्स्ट हम किस पे जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं जी HEC के डेटाबेसेस के ऊपर। थैंक यू। HEC के डेटा, आपने यहाँ लिखना है HEC डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, आपने लिखना है HEC डिजिटल लाइब्रेरी। हिस्ट्री दे रहे हैं, HEC डिजिटल लाइब्रेरी में हम आते हैं। आपने अपने गूगल में जाके सिंपल HEC डिजिटल लाइब्रेरी देखना है, आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस ऑन हो जाएगा, इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आपने बड़ा नोट करना है, ये देखें, सर्च ऑल HEC इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, इसको कहते हैं समन या प्रोक्वेस्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटाबेस है HEC ने जो हमें दे रखा है। आपने इसमें वही टर्म लिख दी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ये देखिए, और सर्च पे क्लिक कर दिया। अब आप आगे समन या प्रोक्वेस्ट में, ये ऊपर आ रहा था समन 2.0 या प्रोक्वेस्ट, ये आपके सामने आ गया, समन या प्रोक्वेस्ट। अच्छा, इसमें अगर आप अपने लेफ्ट साइड पे जाएं तो लिमिटर्स बहुत ज्यादा हैं, ये जिसको हमने यहाँ कहा था ना फोकसिंग लिमिटिंग का सर्च, ये सही मानों में इस वाले डेटाबेस में मैं आपको सिखाती हूँ। अच्छा, आपने गौर करना है कि रिजल्ट्स हैं कितने, ये जरा नंबर गौर कर लें। अच्छा, मेरे लेफ्ट साइड पे जो चीजें नजर आ रही हैं वो कहती हैं कि क्या आपको फुल टेक्स्ट ऑनलाइन सिर्फ चाहिए, अभी तो सारों पे टिक हुआ हुआ है। अगर आप चूज करना चाह रहे हैं, लिमिट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्कॉलरली और पीयर रिव्यू या फुल टेक्स्ट। मैं कहती हूँ फुल टेक्स्ट वाले मुझे दिखा दो, फुल टेक्स्ट वाले दिखाएगा तो रिजल्ट्स में चेंज आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको जर्नल आर्टिकल चाहिए, थीसिस चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, मैगजीन आर्टिकल चाहिए, क्या चाहिए भैया आपको, लिस्ट है पूरी, ये पूरी लिस्ट है। मैं कहती हूँ जी मुझे ना आप सिर्फ थीसिस दिखा दें, ये मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ, आपने जरा अप्लाई कर देना। अब आप नंबर नोट कीजिएगा, यहाँ नंबर चेंज आ गया,
अच्छा ठीक है, अब मैं पब्लिकेशन ईयर भी तय कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ पिछले 3 साल के दिखा दो रिजल्ट, नंबर और चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, 11,603 सिर्फ रह गए। अभी और स्पेसिफाई करती हूँ मैं कहती हूँ कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अपने सब्जेक्ट में। मैं जनाब क्या करती हूँ कि मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि क्या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में कोई पढ़ा हुआ है, ऐसा कोई नजर आता है? नहीं आता। फर्ज करें तो कोई और सब्जेक्ट देख लेते हैं। अच्छा जी, फर्ज करें मैं इसको कहती हूँ कि एजुकेशन में दिखा दूँ। अच्छा जी, एजुकेशन में ये ग्रीन जो है इस पे क्लिक कर लिया, इंक्लूड दिस आइटम, और उसके बाद अप्लाई कर दिया। ले जी, अप्लाई करके 11,603 में से और काम रह जाने चाहिए 1,154। अच्छा मैंने कर दिया अप्लाई। अब मैं और आगे जाती हूँ, सब्जेक्ट टर्म्स है आगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये और स्पेसिफाई करता है। अब मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन लिटरेसी का टॉपिक एकेडमिक अचीवमेंट में चाहिए, एडल्ट एजुकेशन में चाहिए, आर्ट में चाहिए, एशियन स्टडीज में चाहिए, कहाँ चाहिए? मैं कहती हूँ कॉलेज स्टूडेंट्स पे चाहिए। कॉलेज स्टूडेंट पे अप्लाई कर दिया। थीसिस निकल रहे हैं, सिर्फ 7 थीसिस ऐसे हैं जो कि कॉलेज स्टूडेंट पे बात करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको हजारों टॉपिक्स देखने की जरूरत रह गई पीछे? नहीं, बाकी रह गई। आपने कॉलेज स्टूडेंट्स के थीसिस देखने थे, आपने यहाँ से चूज कर लिए, 7 थीसिस आपके सामने आ गए, और ये देखिएगा फुल टेक्स्ट फ्री अवेलेबल। ये जरा ओपन हो रहा है। ये जरा जितने में ओपन होता है हम वापस आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये देखिए लेफ्ट साइड पे सारे क्या है, लिमिटिंग अ सर्च या स्पेसिफाई करने के लिए, जबकि यहाँ भी एडवांस सर्च की ऑप्शन है। ये देखिए मैंने एडवांस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे वही वाले लिमिटर्स जो उधर थे, उसमें मैं कहती हूँ कि सिर्फ ओपन एक्सेस चाहिए मुझे, सिर्फ ओपन एक्सेस, और सर्च कर देती हूँ। 0 रिजल्ट्स, सिर्फ ओपन एक्सेस नहीं है। फर्ज करें जी ये खुल रहा है पूरा थीसिस, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन इतने में हम वापस आते हैं। ये जी हम वापस क्लियर कर लेते हैं, और जनाब हम सारे लिमिटर्स ऑफ कर देते हैं। यहाँ से ये देखें हम डिसिप्लिन चूज कर सकते हैं, कंटेंट टाइप्स चूज कर सकते हैं, इवन लैंग्वेज। उसमें बाद लोगों को गिला रहता है कि अरेबिक में नहीं है। मैं ये न्यू सर्च में जाती हूँ और मैं कुछ लिखती हूँ, उसमें मुझे डिवोर्स पे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। सर्च करते हैं, सिस्टम थोड़ा सा स्लो। ये देखें जी थीसिस पूरे का पूरा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का आ गया, और डिसर्टेशन जनाब आपके सामने है। ये पूरा थीसिस डाउनलोडेबल है, फ्री, फुल टेक्स्ट पढ़ा हुआ। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ये मैं बंद कर रही हूँ। अब यहाँ आते हैं, ये डिवोर्स के बारे में जानना है, लेकिन मुझे डिवोर्स के बारे में ना खास लैंग्वेज में जानना है। मोर पे चली जाती हूँ, देखती हूँ किन किन जुबानों में पड़ी हुई है। देखते हैं, अफ्रीकन है जी 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 जी, इंग्लिश है, हिंदी, हिंदी में देखें, हिंदी में अप्लाई कर देती हूँ, देखते हैं क्या है हिंदी में पढ़ा हुआ। अच्छा जी, देखते हैं जी, ये थीसिस है, ये पढ़ा हुआ है समझ हिंदी, स्वामी रामानंद, यूनिवर्सिटी इंडिया। देखते हैं क्या पढ़ा हुआ। ये है जी हिंदी का थीसिस, ले जी आपके सामने, ये देख लें। ठीक है जी, तो हम इस दौर में अगर ये कहें ना कि हमें कोई चीज नहीं मिलती, तो ये कोई बहुत अक्लमंदी की बात नहीं है। आपको चीजें सर्च करनी आनी चाहिए बस।
ये सारे फ्री आपके पास पड़े हैं। अभी अगर आप मेरे साथ भी कर रहे हो तो आपको मिल जाएंगे। तो जनाब ये था प्रोक्वेस्ट या समन। यहाँ तक कोई सवाल अगर आपके ज़हन में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर हमाद नकवी साहब, मैंने जो चीजें अभी आपको सर्च करके दी हैं ये आप अभी घर बैठे कर लें तो फ्री में आपको मिल जाएंगी। जब मैंने फुल टेक्स्ट ऑनलाइन पे क्लिक कर दिया, ये सारे थीसिस दुनिया में एक कैंपेन है ओपन एक्सेस की जिसके थ्रू रिपोजिटरी में फुल टेक्स्ट फ्री पड़े हुए हैं। जी अलग साहब कोई मसला नहीं, आप मुझे दोबारा पूछें, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। सवाल पूछें, कहाँ मसला आया है। ओपन करते हैं तो हमारे पास अगर कुछ आर्टिकल्स जो हमें चाहिए होते हैं तो हमें वो साइट खोल देता है, यही HEC की साइट। हमें उस साइट पे मसलन सपोज मैंने कम्युनिकेशन स्टैटिस्टिक्स में जाना है या किसी और जनरल में जाना है, वो सिर्फ वो साइट खोल देगा। जब मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा फुल टेक्स्ट आर्टिकल, दोज आर पेड आर्टिकल्स दैट विल से दैट कांटेक्ट टू योर इंस्टीट्यूशन। कॉलेज लेवल पे हमें ये सहूलत नहीं दी जाती। देखिए सर, आपकी अगर कॉलेज में ये सहूलत नहीं है ना, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आपके तमाम पब्लिशर्स ने, उसमें सेज है, उसमें एमरल्ड है, उसमें टेलर एंड फ्रांसिस है, बड़े बड़े पब्लिशर्स ने 70% चीजें फ्री कर दी हैं। आपको लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है, आप रहेगी 30%। तो मैं आपको उसका भी तरीका बता देती हूँ कि आपने उसको बगैर HEC के कैसे एक्सेस करना है, मैं भी आपको बताती हूँ। अल्लाह साहब HEC डिजिटल लाइब्रेरी पे आ जाते हैं वापस। HEC डिजिटल लाइब्रेरी में हम गए, यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन लिटरेसी पे क्लिक किया, हम समन 2.0 में आ गए। समन 2.0 ये देखें लिखा हुआ है, इसमें हमने अपना टॉपिक लिखा और ये लेफ्ट साइड के बटन इस्तेमाल किए। आप जरा सारे लोग इस लेफ्ट साइड के या डाइजेटेशन और थीसिस पे सिर्फ क्लिक कर लेंगे, फ्री अवेलेबल होते हैं फुल टेक्स्ट। इस पे क्लिक कर लें और देखें कि आपके ये सारे, और एरिया लिटरेसी मैंने एरिया तय कर लिया। आप तय करें और देखें कि आपको स्क्वीज होकर रिजल्ट्स आते हैं, टू द पॉइंट आते हैं या नहीं आते, और फिर मुझे बताएं कि कहाँ मसला आ रहा है। तारिक साहब, मैं आपको बड़े प्रॉपर सीक्वेंस में बता रही हूँ। हमने सबसे पहले गूगल किया, फिर हमने गूगल स्कॉलर किया। अब मैं आपको HEC का एक डेटाबेस जो कि मेटा सर्च इंजन है, प्रोक्वेस्ट, वो बता रही हूँ। और प्रोक्वेस्ट में मैंने बड़ा क्लियर आपको बताया कि प्रोक्वेस्ट के अंदर ये लेफ्ट साइड पे लिमिटर्स हैं जो कि गूगल एडवांस में भी थे, जो कि और भी आने वाले डेटाबेसेस में आपको नजर आएंगे। तो अगर सीक्वेंस नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे पर्टिकुलरली बताएं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ताकि हम उसको सॉर्ट आउट कर लें। जी तारिक साहब, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन लिख सकते हैं आप। जी अल्लाह साहब, यहाँ तक क्लियर है? मेटा सर्च इंजन में हम चले गए प्रोक्वेस्ट में, और प्रोक्वेस्ट में जाने के बाद हमने वहां एक क्वेरी डाली और लेफ्ट साइड के जो ऑप्शंस थी उनको इस्तेमाल करके लिमिट किया अपनी सर्च में। अभी भी अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज जरूर पूछें। हम इसीलिए यहाँ हैं कि हम एक दूसरे को सिखा सकें, समझा सकें। अदरवाइज फिर हम इससे एक स्टेप आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं, ताकि कुछ और चीजें भी हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। अच्छा जी, आपके सामने फ्रेज सर्च हमने कर ली, फोकसिंग लिमिटिंग अभी मैंने आपको प्रोक्वेस्ट में करके दिखा दिया। अब हम बात करते हैं बुलियन ऑपरेटर्स की। बुलियन ऑपरेटर्स होते क्या हैं, इस पे बात करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, होता यह है कि इन्हीं डेटाबेसेस के अंदर जो रिट्रीवल सिस्टम है वो क्या करता है कि आपको ऑप्शन देता है टर्म्स को जोड़ने की या अलग करने की। मसलन अभी हमने और का ऑपरेटर इस्तेमाल किया था गूगल के अंदर। अच्छा, और कहता है कि अगर एक लफ्ज के लिए कई लफ्ज इस्तेमाल होते हैं एक टर्म के अलावा, तो आप और लगाते जाएं तो आपको तमाम मुमकिन रिजल्ट्स एक जगह पे मिल जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया और का ऑपरेटर। अब एंड को समझना है। एंड में कंसेप्ट ए है पॉवर्टी और कंसेप्ट बी है क्राइम।
अच्छा जी, मैंने ताल्लुक देखना है पॉवर्टी और क्राइम का आपस में क्या ताल्लुक है, मुझे तो इस पे इंफॉर्मेशन चाहिए। अब जब मैं किसी भी डेटाबेस के अंदर ये 2 लफ्ज लिखूंगी तो वो 3 तरह से इसको डील करेगा, 3 तरह से। सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट लाएगा आपके लिए जो पॉवर्टी पे बात करेंगे, अकेले पॉवर्टी पे। फिर वो आपके लिए वो डॉक्यूमेंट्स लाएगा जो क्राइम पे बात करेंगे। फर्ज करें 10 डॉक्यूमेंट थे पॉवर्टी पे, 10 अकेले क्राइम पे, 20 हो गए। अब 10 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनमें पॉवर्टी पे डिस्कस हुआ है और क्राइम भी हुआ है, वो भी सर्च करके ले आएगा। जब आप सिंपल सर्च देंगे तो वो 30 के 30 रिजल्ट्स लाएगा आपके पास। लेकिन अगर हम टर्म ए जो कि यहाँ पे पॉवर्टी है इसके और टर्म बी के दरमियान एंड का ऑपरेटर लगा दें जो कि गूगल ऑटोमेटिकली लगा देता है, तो हमें ये सिर्फ वो रिजल्ट्स मिलेंगे 10 जिन पे इन दोनों में बात हुई हुई है, इन दोनों में बात हुई हुई है। मैं इसकी भी एक मिसाल देती हूँ आपको, एक डेटाबेस से समझाती हूँ। प्रोक्वेस्ट क्लियर नहीं हो रहा मुबशिर साहब, मुबशिर साहब प्रोक्वेस्ट क्लियर नहीं हो रहा, मैं आपको फिर समझाती हूँ। प्रोक्वेस्ट मुबशिर साहब क्या है, ये एक मेटा सर्च इंजन है। मेटा सर्च इंजन ये होता है, जैसे फर्ज करें कि आपके पास एक फार्मेसी है, एक स्टोर है, एक रेस्टोरेंट है, 3 मुख्तलिफ चीजें हैं। अब आपके पास एक मॉल है जिसमें वो सारी चीजें हैं। ये एक ऐसा सर्च इंजन है जो मुख्तलिफ डेटाबेसेस से सारी चीजें तलाश करके आपको वन स्टॉप शॉप प्रोवाइड करे। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आप अपनी टर्म लिखेंगे तो उस टर्म पे टॉपिक पे मौजूद आर्टिकल्स भी आ जाएंगे मुख्तलिफ डेटाबेसेस से, फ्री सोर्सेज से भी और फ्री बेस्ड से भी आ जाएंगे। अब आपने क्या किया कि मसलन 1,60,000 रिजल्ट्स आ गए हैं, आप 1,60,000 रिजल्ट्स कैसे देखेंगे मुझे बताएं। तो आपके पास जो लेफ्ट साइड पे लिमिटर्स होंगे, मैं दोबारा दिखाती हूँ, आपके पास जो लेफ्ट साइड पे लिमिटर्स होंगे ये वाले, कि आपको मदद करेंगे कि 1,60,000 को कम कैसे करना है, कैसे आपकी चॉइस से। मतलब मेरी चॉइस ही नहीं है कि 1908 से लेके आज तक के आर्टिकल देखूं, मेरी तो चॉइस ये थी कि पिछले 5 साल के देखने हैं। तो ले जी, मेरे रिजल्ट्स कम हो गए, 468 रह गए सिर्फ। फिर मेरी चॉइस ये थी कि ये वाला मजमून जो है ये एजुकेशन में भी पढ़ाया जाता है, ये और जगहों पे भी पढ़ाया जाता है, तो मैंने सिर्फ एजुकेशन और लिटरेसी में देखना है। ले जी, मैंने एजुकेशन और लिटरेसी को क्लिक कर दिया। यानी मैं अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी चॉइस लिमिटेड करती जाऊंगी और मेरे पास रिजल्ट्स लिमिटेड होते जाएंगे, या एक्सपेंड भी कर सकती हूँ अगर मुझे जरूरत है। तो जब मैंने ये सब कर लिया तो मेरे पास यहाँ रिजल्ट्स आ गए, तो मैं किसी एक रिजल्ट को जो मुझे चाहिए, मसलन ये वाला, तो मैंने इस पे क्लिक किया तो इसने मुझे फुल टेक्स्ट दे दिया। अभी मैं शायद हमें बात करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत है अगर मैं डिटेल से समझाऊं कि ये कैसे मुफ्त है, आपके पास फ्री है। दुनिया में ओपन एक्सेस जो है उसकी मूवमेंट चली हुई है कि हैव और हैव नॉट के दरमियान फर्क खत्म किया जाए और उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन फ्री मिले जो अफोर्ड नहीं करते। उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये उठाया गया कि यूनिवर्सिटियां अपने थीसिस ऑनलाइन फ्री रखें। उस कैंपेन के तहत यहाँ पे थीसिस एंड डायजेटेशन आपको फ्री मिलेंगे और ये सबसे बड़ा डेटाबेस है प्रोक्वेस्ट, जो कि इतनी बड़ी तादाद में आपको थीसिस और डायजेटेशन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से फ्री प्रोवाइड करता है। ये देखें कि पीडीएफ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये फुल पीडीएफ आपके सामने व्यू आ जाएगा, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है जी। तो अब वापस आते हैं आपकी तरफ, पूछते हैं कि कोई मसला हल हुआ जी? कोई नहीं, यूजर नेम इमरान आबिद साहब जरूरत ही नहीं है, आप मेरे साथ साथ भी काम करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जरूरत नहीं है यूजर नेम पासवर्ड की। सो जनाब मैं फिर वापस आती हूँ। आमिर साहब बहुत शुक्रिया। मुबशिर साहब मुझे बताइएगा कि अभी कोई एम्बिग्विटी अगर है तो। चलिए, मेरा ख्याल है कि मुबशिर साहब क्लियर हो गया, थैंक यू सर। आगे चलते हैं जी, थोड़ा सा हमने यहाँ पे एमरल्ड पे बात करनी है। अच्छा जी, HEC में वही उसी वेबसाइट उसी प्लेटफॉर्म पे वापस जाएं और वापस जाके आपने यहाँ पे ई डेटाबेसिस पे क्लिक कर देना है। ये आपके पास आ गए ई डेटाबेसिस। ई डेटाबेसिस में अगर आप देखें तो आपके पास ना डिवाइड हुए हैं, मैनेजमेंट साइंस के डेटाबेसिस, मल्टी डिसिप्लिनरी। अब आपने इसमें एक डेटाबेस है एमरल्ड, इस पे हम जा रहे हैं। इसकी जिस पे भी क्लिक करेंगे उसकी सब्जेक्ट स्ट्रेंथ यहाँ आ जाएगी कि मेरा मजमून इसमें है भी या नहीं, सर्च करने लगा हूं मैं। तो आपने एमरल्ड के URL पे क्लिक कर देना है।
अब हम एंड ऑपरेटर लगाने लगे। एंड ऑपरेटर, अच्छा जी, एंड ऑपरेटर हमने कैसे लगाना है? हमने जनाब यहाँ पे एडवांस सर्च के अंदर चले जाना है। ये देखिए एडवांस सर्च, मैंने यहाँ लिखा इंफॉर्मेशन और साथ लिख देते हैं लिटरेसी और सर्च करते हैं, सर्च करते हैं। सर्च करते हैं जी, रिजल्ट्स देखिएगा जरा, तकरीबन 20,000 के करीब है, एग्जैक्टली 20,000। अच्छा, अब जरा एडवांस सर्च पे जाके देखते हैं कि अगर हम इसको एंड ऑपरेटर से जोड़े, बात ये ऑटोमेटिक जोड़ देता है, ये डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी करता है, देखते हैं ये ऑटोमेटिक जोड़ है या नहीं। मैंने लिटरेसी उठा लिया इसमें से और यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहने दिया, एड रो एंड, और यहाँ पे लिटरेसी लिख दिया। अब देखते हैं रिजल्ट्स की तादाद कुछ कम ज्यादा होती है या नहीं। थोड़ा सा स्लो है, चलिए जितने में वो सर्च करता है हम यहाँ पे नॉट पे बात करते हैं। नॉट का मतलब ये होता है कि कॉन्सेप्ट ए चाहिए, बी नहीं चाहिए। देखते हैं सर्च करके लाया। ये रिजल्ट एंड के साथ सिमिलर रिजल्ट्स आए, इसका मतलब है कि एंड वो ऑटोमेटिक लगा रहा था। अब अगर मैं इसको और कर दूं, ये 20,000 थे और उनकी सूरत में भी रिजल्ट्स की तादाद देखिए आप जरा, एकदम 20,000 से कहां जंप हुई है। रिजल्ट्स की तादाद देखिए और के साथ। अच्छा, अब मैं कहती हूँ नॉट। नॉट का मतलब ये है कि मुझे इंफॉर्मेशन तो चाहिए लेकिन लिटरेसी पे कुछ नहीं चाहिए। यानी मुझे शक है कि जब मैं इंफॉर्मेशन लिखूंगी तो साथ लिटरेसी की चीजें ना आए, मतलब आ ना जाए। तो अब मुझे नहीं चाहिए, नॉट लगाऊंगी। जब नॉट लगाऊंगी तो जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखिएगा कि मेरे रिजल्ट्स नैरो होंगे या ब्रॉडर होंगे, जरा बताइए मुझे। मेरे रिजल्ट्स नैरो होंगे या ब्रॉडर होंगे अगर मैं नॉट लिखती हूँ? देखिए एंड से नैरो हुए और से ब्रॉडर हुए। अब नॉट लिखने से क्या रिजल्ट्स आने की तवक्को है? मैं कहती हूँ कि ए टर्म इंक्रीज होंगे, असगर साहब आप कहते हैं, मुबश्शिर साहब कहते हैं नैरो होंगे। चले देखते हैं, आज हम इधर चलते हैं, देख लेते हैं अभी। जनाब अच्छा जी, मैंने नॉट लगाया हुआ है और हम यहाँ पे सर्च कर देते हैं। रिजल्ट्स नोट करने हैं आपने। थोड़ा सा सिस्टम स्लो है। लीजिए, कम हुए, इंक्रीज नहीं हुए। मुबश्शिर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, 20,000 से भी नीचे आ गए। यानी इंफॉर्मेशन एंड लिटरेसी में 20 आए, नॉट में 19,000 आए और में बहुत ज्यादा हो गए थे, 3 लाख के करीब। तो मेरा ख्याल है एंड और नॉट को आप समझे। चले एक और सिस्टम में समझते हैं इसको। ये एमरल्ड था ना, किसी और जगह भी सर्च कर लेते हैं। इधर से हम चूज कर लें, जे स्टोर में चले जाते हैं, जे स्टोर में चले जाते हैं।
अच्छा, यहाँ भी देखते हैं कि एंड और नॉट कैसे काम करता है। अच्छा जी, एडवांस सर्च में मैं चली गई। एडवांस सर्च में जाके मैंने यहाँ लिखा है जी लव्स इंफॉर्मेशन, और यहाँ से एंड ऑपरेटर लगा हुआ है और मैं लिखती हूँ लिटरेसी। रिजल्ट्स लेती हूँ कितने आते हैं। ये देखिएगा 1,34,520 रिजल्ट्स। अच्छा, अभी हम और लगाते हैं और देख लेते हैं, वहां से भी वापस जाके लगा सकते हैं एडवांस सर्च में भी। मैं वैसे जरा इसको यहीं से चेंज कर देती हूँ। ये देखें बहुत ज्यादा रिजल्ट्स, और नॉट से ये फिर से नैरो हो जाएंगे। कैपिटल में आपने लिखना, ये फिर से नैरो हो जाएंगे। ठीक है जी, और एंड से तो बहुत नैरो हो जाएंगे, सबसे ज्यादा नैरो एंड से आएंगे। ठीक हो गया जी। आई होप के अब आप एंड और नॉट में क्लियर हो गए हैं। जरा मुझे बता दें ताकि मैं आगे चलूं। शराफत अली, स्कोपस पे भी बात हो सकती है, लेकिन मैं उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, एक मिनट। फ्रॉम गूगल टू एमरल्ड पेज पे किस तरह आना है नजर साहब? नजर साहब मैं बताती हूँ आपको। गूगल से आपने लिखना है HEC डिजिटल लाइब्रेरी। ये देखिए, ये लिखना है आपने HEC डिजिटल लाइब्रेरी में। वापस आ गई हूँ, ये देखिए डिजिटल लाइब्रेरी HEC सिर्फ लिख दें तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से आपने ये प्रोक्वेस्ट के लिए है और ये ई डेटाबेस के लिए। जी नजर साहब, आपके सवाल का जवाब मिल गया मेरा ख्याल है। ठीक हो गया जी। अल्लाह साहब कहते हैं क्लियर है, थैंक यू मंजूर साहब। ओके फाइन। अच्छा, अब जो हम वापस अपनी, थैंक यू तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। अब हम वापस आते हैं। नहीं जी, बुलियन ऑपरेटर्स क्लियर हो गए हमारे पास। अब आपने गौर करना है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन में कहाँ पहुंच रहे हैं। बुलियन क्लियर, फ्रेज क्लियर, वो डबल कोटेशन हर जगह इस्तेमाल होती है। अभी मैं आपको इधर भी करके दिखा देती हूँ। मसलन आप ये देखें, मैंने सिंपल लिखा इंफॉर्मेशन लिटरेसी, एंटर कर दिया। बीस हजार के करीब रिजल्ट्स आ गए, 20,000 के करीब रिजल्ट्स आ गए। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, फ्रेज सर्च करते हैं, यानी एग्जैक्ट यही दो लफ्ज हो, फिर देखते हैं रिजल्ट नैरो होते हैं या नहीं। अभी ये थोड़ा सा स्लो है। सिस्टम थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं पूरे टाइम में आपको रिजल्ट्स सारे डिस्कस कर लूं। चलिए, हम फ्रेज सर्च को असल में एमरल्ड में जा रहे हैं और उसमें थोड़ा सा टाइम लगा।
ये थोड़ा सा स्लो है। फ्रेज सर्च में दोबारा करती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस पहुंच जाऊँ। सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इंटरनेट ट्राइंग। चले इस दौरान हम जी में आ गया, हो गया जी। अच्छा जी, अब ये देखें, अब 20,000 रिजल्ट हैं, गौर करना है आपने। अब हम फ्रेज सर्च करने लगे हैं, मैं डबल कोटेशन लगा देती हूँ इधर। अब आपने गौर करना है कि रिजल्ट की तादाद कितनी आती है। अब ये इसको डबल कोटेशन के साथ एग्जैक्ट, अब गौर करें कितने, 4,000 से, यानी एग्जैक्ट ये फ्रेज इकट्ठा जहां नजर आएगा ना, उतने रिजल्ट आए हैं। ये देखें, इकट्ठा इंफॉर्मेशन लिटरेसी देख लें आप, टोटल ऐसे। इसको कहते हैं फ्रेज सर्च, डबल कोटेशन के साथ एग्जैक्ट फ्रेज। लंबा भी हो सकता है, इससे लंबा भी हो सकता है, ठीक है। और आप डबल कोटेशन लगा दें, आपको एग्जैक्ट आपकी वही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं। फ्रेज सर्च हमने कर लिया, बुलियन हमने कर लिया, फोकसिंग लिमिटिंग हमने कर लिया। अब दो रह गए हैं जी, ट्रंकेशन वाइल्ड कार्ड और प्रॉक्सिमिटी। ये भी बड़े इंटरेस्टिंग फीचर है कि एक लफ्ज है, उसका आप यहाँ पे नोट करें मैं क्या लिख रही हूँ। मैंने लिखा ये, अच्छा इससे और कौन से लफ्ज बन सकते हैं इसके आगे, जरा मुझे बताने हैं। ये देखिए जरा, स्टेम वर्ड है 1 2 3 4 5, 5 हरफों से एक स्टेम वर्ड है साइक। इसके आगे कौन कौन से लफ्ज बन सकते हैं, जरा यहाँ लिखिएगा। साइकोलॉजी फर्ज करें, और क्या बन सकता है इससे। ये टर्म है जी, स्टेम वर्ड ये है, क्या बन सकता है सर। साइकोलॉजिस्ट, वेरी ट्रू। और साइकियाट्रिक, वेरी ट्रू नजर साहब। अब हम देखें साइकोथेरेपी, दैट्स ग्रेट। साइकियाट्री, वेरी ट्रू। अच्छा, मुझे इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या मैं सबको बारी बारी करूं? नहीं, मुझे सबको बारी बारी नहीं सर्च करना चाहिए। मुझे ये लिख के इसके आगे स्टेरिक डाल देना चाहिए। अब सारे लफ्ज सर्च होके आएंगे जो आप बता रहे हैं। ये स्टेम वर्ड है जी। आगे ये गौर कीजिए, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्री, यानी वो तमाम मुमकिन लफ्ज जो इस स्टेम वर्ड से बन सके, वो सारे सर्च होके आ जाएंगे सिंगल सर्च में। तो आप देखें कि आप कितने कंफर्टेबल रहेंगे, आपको बार बार जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा। आपने मेरी बड़ी मदद कर दी। एक और चीज करते हैं, फर्ज करें मैं चाइल्ड लिखती हूँ, इसके और वर्ड कौन से बन सकेंगे? चाइल्ड के और लफ्ज कौन से मुमकिन है? चाइल्डिश, बिल्कुल ठीक। चाइल्डहुड, बिल्कुल ठीक, दैट्स ग्रेट। चलिए हम आते हैं वापस और हम सर्च करते हैं। हमने स्टेम वर्ड सेम लिख दिया जहां तक है, और जहां डिफरेंस आने के चांसेस है हमने अलग कर दिए। अब जरा आपने गौर करना है जी, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, डिफरेंट, चाइल्डहुड। आप देख लें आपके सामने ये ढेरों रिजल्ट्स हैं, जितने मुमकिन लफ्ज होंगे वो आ जाएंगे आपके। इसको कहते हैं जी ट्रंकेशन। ट्रंकेशन एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है। अच्छा, वो शुरू में या सेंटर में लिखती है। मतलब आप ये देखिए, मैं यहाँ लिखती हूँ, स्टेरिक लगा दिया सेंटर में और ये लिख दिया। अब क्या इम्कान है कि कौन कौन से लफ्ज आ सकते हैं इसमें, जरा
और करें आप, ये 4 हर्फ लिखे हैं मैंने और एक खाली छोड़ दिया, उसमें स्टैटिक लगा दिया, कौन कौन से आ सकते हैं? मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आप सारे मेरा बड़ा साथ दे रहे हैं। मेरी मदद कीजिए और मुझे बताइए क्या वुमेन आ सकता है और ये चीज दोनों आ सकते हैं, विमेन भी और विमेन भी। नहीं जी, हमने क्या किया है कि हमने सर्च किया, इसको करते हैं और देखते हैं, यानी ऐसे लफ्ज जिसमें इम्कान हो कि दरमियान वाले कुछ हरफ सिमिलर है और या डिफरेंट है, तो उनको हम इस तरह से सर्च कर सकते हैं। मैं अभी ये सर्च कर रही हूँ, रिजल्ट्स उनको इस तरह सर्च कर सकते हैं। ये देखें जी, विमेन प्लूरल में आ गया, सिंगुलर में आएगा तो वो भी नजर आ जाएगा नीचे, ठीक है। नीचे अभी ये सारे प्लूरल आ रहे हैं, कहीं विमेन होगा तो आ जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी इसकी एग्जांपल होती है, उसमें आप ये देखें कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में आपको पता है ना, बात का स्पेलिंग्स का डिफरेंस होता है। मतलब CON स्ट्राइक R, मुमकिन है कि COLOUR भी आ जाए और COLOR भी आ जाए, तो हम सर्च करके देख लेते हैं। ये देखें जी, COLOUR, ठीक है जी, और COLOR भी जहां होगा वो आपको नजर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको वाइल्ड कहते हैं, इसको वाइल्ड कार्ड कहते हैं। तो ये जो वाइल्ड कार्ड और ट्रंकेशन होता है, ये आपकी सर्च आसान और छोटी कर देता है। कम टाइम में आप ज्यादा चीजें सर्च कर सकते हैं जो रेलिवेंट है, इररेलिवेंट भी नहीं आएगी, ठीक है। अब एक लास्ट जो सर्च है वो है प्रॉक्सिमिटी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रॉक्सिमिटी क्या होती है कि कोई इंफॉर्मेशन एक दूसरे से कितना दूर है। मैं आपको इसकी जरा मिसाल समझाती हूँ, इसको व्हाइट बोर्ड समझते हुए। मैं फर्ज करें यहाँ पे लिखती हूँ, मैं इसको ही लेती हूँ फोकसिंग। अच्छा, इसमें मैं 2 लफ्ज तलाश करना चाह रही हूँ, एक डिफरेंट और एक लिमिटिंग। ये 2 टर्म जो हैं, अगर मैं तलाश करना चाहूँ तो मुझे ये स्लाइड मिल जानी चाहिए सूली तौर पे, लेकिन डिफरेंट और लिमिटिंग का एक दूसरे से ताल्लुक जो है वो कितने लफ्ज दूर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें नंबर पे दूसरा लफ्ज आ रहा है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये दोनों लफ्ज करीब करीब लिखे हों ताकि पता चले कि ये दोनों एक ही मौजू पे बात कर रहे हैं, तो मुझे प्रॉक्सिमिटी सर्च लगानी होती है। मसलन मैं एक और मिसाल देती हूँ, मैं यहाँ लिखती हूँ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, तो अब ये एक दूसरे के कितना करीब है? एक लफ्ज का भी फर्क नहीं है। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड लिटरेसी, तो यहाँ पे लफ्जों का फर्क गौर कीजिएगा, चौथे नंबर पे आगे लफ्ज है, चौथे नंबर पे आगे लफ्ज है। अच्छा, अब अगर लिटरेसी से दूर जाता जाएगा तो एन मुमकिन है कि हम एक ऐसे डॉक्यूमेंट को तलाश कर रहे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन किसी और सेंस में इस्तेमाल हुआ हुआ है और लिटरेसी किसी और में। अच्छा, इससे बचने के लिए हम प्रॉक्सिमिटी सर्च लगाते हैं। मैं आपको समझाती हूँ प्रैक्टिकली। ये देखिए, JSTOR में एडवांस सर्च पे मैं चली गई। अच्छा, मैंने इसको कहा कि पहला लफ्ज ढूंढो इंफॉर्मेशन और दूसरा लफ्ज हो लिटरेसी, और एक दूसरे से वो दूर हो मैक्सिमम 5 हरफ, 5 लफ्ज, और मैंने जनाब सबमिट कर दिया एडवांस सर्च। अब आपने रिजल्ट देखने हैं, 6416। अगर मैं लफ्जों की तादाद बढ़ा दूं, मैं कहूँ एक दूसरे से 10 लफ्ज भी दूर हो तो चलेगा, तो आपके ख्याल में रिजल्ट्स कम आएंगे या ज्यादा? बताइएगा जरा मुझे। रिजल्ट्स कम आएंगे या ज्यादा? तौफीक साहब कम आएंगे, मसूद साहब ज्यादा आएंगे, शहजाद साहब बिल्कुल आप दोनों ठीक कह रहे हैं, ज्यादा आने के चांसेस हैं, क्योंकि जब लफ्ज एक दूसरे से दूर हो गए तो ज्यादा ब्रॉडर सर्च हो गई ना, नैरो नहीं रही। सर्च करके देखते हैं। 6416 थे पहले, नहीं जी 10,266 रिजल्ट आ गए। इसका मतलब ये है कि हमने जब एक कॉन्सेप्ट को देखना है कि वो एक दूसरे के साथ क्लोजली डिस्कस हुआ हो 2 टर्म, तो हम नैरो होते हैं और हम इनको नियर 5 करते हैं, ठीक है, नियर 5। अब नियर 5 है, ये दोनों विद इन 5 वर्ड्स में आए, विद इन 5 वर्ड्स में, और 10 कर देंगे तो विद हर 10 लफ्जों में ये कम से कम दोनों एग्जिस्ट करें। ये दोनों
एक फिक्रे में बात हो या एक पैराग्राफ में हो तो 10 लफ्जों के दरमियान हो एक दूसरे के करीब। ये सर्चिंग की टेक्निक होती है। तो हमने क्या किया आज तय कि हमने एक तो लिमिटर्स लगाने करने हैं, बुलियन ऑपरेटर्स लगा सकते हैं, फ्रेज सर्च कर सकते हैं, ट्रंकेशन वाइल्ड कार्ड करेंगे, प्रॉक्सिमिटी करेंगे, फोकसिंग लिमिटिंग करेंगे। गूगल की एडवांस सर्च में जाएंगे और ये सारे फीचर्स इस्तेमाल करने की कोशिश किया करेंगे। ठीक है जी। HEC के रिसोर्सेज में JSTOR आपको दिखा दिया, एमरल्ड आपको दिखा दिया, बाकी आप प्रोक्वेस्ट दिखा दिया, काम भी करवाया। बाकी आपके पास ये सारी दुनिया पड़ी हुई है, आप इसमें से चूज कर लें। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगी वो उन साहिब के लिए है जो ये कह रहे थे कि हमें आर्टिकल्स नहीं मिलते। देखिए थोड़ा इलीगल है, लेकिन साहिब एक ऐसी साइट है जहाँ पे फ्री आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ यहाँ से ये एक पेपर खोला, कोई एक पेपर खोलते हैं और उसका DOI उठाना है, यहाँ से कॉपी करना है। मैं जरा वापस जाती हूँ, ISBN है, ये किताब है। ओके, मैं इधर जाती हूँ, ये आर्टिकल है। वैसे तो ये फुल टेक्स्ट है, लेकिन मैं आपको तरीका समझाने के लिए बता देती हूँ। DOI नंबर कहाँ से लेते हैं? ये DOI आपने कहाँ से लेना है? आपने यहाँ से आर्टिकल का DOI नंबर ले लेना है। ये है, इसको कॉपी करना है आपने। ये आपने Ctrl+C के साथ कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब आपको ये फुल टेक्स्ट मिल जाएगा और आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये आपको फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स प्रोवाइड कर देता है। इसके साथ ही हमारा खत्म हो रहा है। आपसे साथ साथ में सवाल इसीलिए लेती रही कि एम्बिग्यूटी ना रहे और आखिर में बहुत लंबे सवाल ना जमा हो। तो कोई और सवाल है तो प्लीज। फोकसिंग ये है सर कि आपके जो गूगल या एमरल्ड या किसी भी सॉफ्टवेयर डेटाबेस के अंदर ये राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे जो लिमिटर्स आ रहे हैं ना, इनकी मदद से फोकस्ड रिसर्च कर लें। मसलन हमने जो सारे कंटेंट टाइप सर्च किए हुए हैं तो हमें चाहिए सिर्फ आर्टिकल, तो हम क्यों ना आर्टिकल पे क्लिक करके नैरो कर लें अपनी सर्च। इसको कहते हैं फोकसिंग या लिमिटिंग। फिर मुझे चाहिए ही सिर्फ ओपन एक्सेस, तो मैं ओपन एक्सेस पे क्लिक कर दूं, मेरे रिजल्ट्स नैरो होते जा रहे हैं। तो जो आपको चाहिए होता है, आप अपनी नीड बेस्ड फोकस करते हैं, उसको फोकसिंग कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी जी मैडम, आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा इंप्रेसिव और बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं। मैंने सिर्फ ये पूछना था, एक मैडम ये एमरल्ड, ये जो इनलाइट है और इसी तरह से JSTOR है, आपने जो प्रोग्राम बनाए बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों में मैडम फर्क क्या है? मतलब किस वक्त हम एमरल्ड पे जाएंगे और किस वक्त हम JSTOR में आएंगे, या हम अपनी मर्जी से जो एक्सरसाइज कर सकते हैं? जी सर, ये आपके पास HEC की लाइब्रेरी खुली है। जी आप क्या करना है कि अगर आप साइंस के हैं, आपने क्या करना है कि डेटाबेस पे क्लिक करना है और आपने यहाँ अपनी सब्जेक्ट स्ट्रेंथ पढ़ लेनी है। ये है। अच्छा, अगर तो आपका मजमून यहाँ आता है तो आप जाएं इसमें सर्च करें। अगर आपका मजमून यहाँ फॉल नहीं करता तो आप किसी दूसरे की तरफ चले जाएं, किसी तीसरे की तरफ चले जाएं। और सर्चिंग रूल्स सब में तकरीबन एक जैसे हैं, बाय एंड लार्ज एक जैसे हैं। ठीक है। ये तो मैंने मिसाल के तौर पे JSTOR और ये खोल दिया। अच्छा, यहाँ पे बार बार एक सवाल और आ रहा है, ये आ रहा है कि जी वेब ऑफ साइंस और स्कूपस हमें एक्सेस नहीं है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शराफत साहब, हमें बिल्कुल एक्सेस नहीं है। इवन पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी स्कूपस का फ्री वर्जन कुछ देर चला है, अब नहीं है। लंग्स के पास स्कूपस है, इसी तरह कुछ लोगों के पास वेब ऑफ साइंस है। तो इसलिए ही हम उस पर नहीं गए कि जब उसकी एक्सेस नहीं है तो हम उसमें आपको क्या सिखाएं। ठीक है, अभी जो हमने की है वो सीखने वाली थी। ये मैम जो लास्ट आपने बताया है, ये काइंडली एक दफा फिर ये रिवाइज कर दीजिएगा। ये जो ये मैम जो आपने बताया कि DOI को आपने कॉपी करके वो हाँ जी, ये आपने सर एक आर्टिकल खोलना है। मसलन ये मैंने एक आर्टिकल पे क्लिक कर दिया, खोल लिया। ठीक है, इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन आ रही है ना, इसके एंड पे ना ये DOI आ रहा है। जी ठीक है, या इसको कॉपी कर लिया। अब क्या इसको हमने कॉपी कर लिया। अब हमने यहाँ पे लिखा साहिब, SCIHUB SCIHUB जी आ गया।
अब जी, इस पे पेस्ट कर दिया, जी, अब ओपन कर दिया। राइट, साइंस हब आपने बोला था, ठीक हो जी, गया। ठीक हाँ है। साई हब। ठीक, तो इसमें बहुत नए तो शायद जो कल छपे हो ना आए, लेकिन जो 1 महीना पहले छपे होते हैं वो आमतौर पे मिल जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू मैडम वैसे बहुत। ये लीगली तो जाहिर है कोई लीगल नहीं है, लेकिन मैं कहा करती हूँ कि पाकिस्तान जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हमें इतनी ये हक हासिल है। हाँ, मैं यही अपने दिल को तसल्ली देती होती हूँ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सर। सबके साथ बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का इंटरेक्टिव होने का शुक्रिया। थैंक यू मेरे मैडम, लिए थैंक यू। पता किया आपने। और कोई मैं अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख रही हूँ, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। जी जी जी, थैंक यू, श्योर, थैंक यू मैडम। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। शराफत अली, थैंक यू वेरी मच सर। आपकी पब्लिकेशंस मेरी नज़र से गुजरती हैं। आई गेस कि आपसे मेरी मुलाकात PHEC के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा पहले भी हो चुकी है। सो गुड टू नो कि आप आज यहाँ थे हमारे साथ। तो मैं भी शामिल हूँ इस ट्रेनिंग में भी, तो वी आर लकी टू हैव यू अगेन। थैंक यू वेरी मच सर। ईमेल ललिता साहब मैंने भेज दी है, saira.im@pu.edu.tk सॉरी, saira.im@pu.edu दोबारा लिख दिए। थैंक यू आमिर साहब, मुझे बड़ी खुशी होती है अपने कॉलीग से मिलके, सबसे बात करके। शराफत साहब और लोग भी होंगे आपने से, उसमें हमने फेस टू फेस फिजिकल मीटिंग की थी, वो अच्छा इंटरेक्शन था। मैं कोशिश करती हूँ कि ऑनलाइन इंटरेक्शन को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रखूँ, लेकिन जाहिर है इसकी एक लिमिटेशन होती है, बट आई ट्राइड माय बेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, टेक केयर।